پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ دینا ہے، ہم نے پاکستان کو سٹیبل بنانا ہے اور اس بحران سے نکالنا ہے. وہ وقت ایک بار پھر آ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھائے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈز ناٹ ہیو اے مینڈیٹ ٹو فارم گورنمنٹ ٹو فارم دا فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کی وجہ سے I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. وزیر اعظم پاکستان کون ہوگا؟ قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں. پیپلز پارٹی کا حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ، وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگی امیدوار کو ووٹ دینے کا اعلان. صدر چیئرمین سینٹ اسپیکرشپ کے لیے پی پی امیدوار کھڑا کرے گی. بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا خواہش ہے آصف علی زرداری صدر بنے. تحریک انصاف آج بھی ایسے فیصلے کر لی ہے جو جمہوریت کے حق میں نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کی حمایت کا اعلان. صدر نون لیگ شہباز شریف اسلام آباد روانہ، اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب بھی ہمراہ. پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کے فارمولے پر مزید مشاورت ہوگی. شہباز شریف مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کریں گے. بلاول کی سوچ جمہوری ہوتی تو نون لیگ کے ساتھ مکمکا کی نئی مہم نہ چلاتے، پی ٹی آئی کو میسر عوامی مینڈیٹ تسلیم کرتے. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کا رد عمل، کہا پارلیمانی عہدوں کی آپس میں تقسیم ان کے کسی کام نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کی ہر سازش اور پس پردہ مکمکا کا توڑ. پی ٹی آئی کے غیر جمہوری رویے کے باعث ہمیں سخت فیصلے کرنا پڑے. ملک اور پارلیمنٹ کسی کی ذاتی ضد اور انا سے بڑے ہوتے ہیں. قائم مقام صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب رانا فاروق سعید کا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا فیصلہ ملک میں سیاسی استحکام کی بنیاد بنے گا. اقتدار کے لیے بچھی بساط پر ہر لمحہ بدلتی سیاسی صورتحال. پی ٹی آئی کا وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو این کے ساتھ حکومت بنانے کا اعلان. خیبر پختونخوا میں حکومت جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر بنائی جائے گی. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا کہنا ہے شریفوں اور زرداری سے لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں، عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق حکومت بنانے دی جائے. الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیول پلینگ فیلڈ، دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا، اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے. آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. صدر نون لیگ شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، کہا اپنی بات پر قائم ہوں. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. الیکشن میں دھاندلی کے الزامات بھی مسترد کر دیے. بولے 10 سے 12% نتائج پر پروپیگنڈا شروع کیا گیا. شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں اکثریت حاصل ہے. این اے 128 سے آئی پی پی کے امیدوار اون چودھری کامیاب قرار. اون چودھری نے 1,72,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی. الیکشن کمیشن کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب کے سیاسی منظرنامے میں بڑی پیش رفت. عبدالعلیم خان کا صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق پنجاب میں مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کی صورت میں سعد رفیق الیکشن لڑیں گے.
صدر استحकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की जहांगीर तरीन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान का जहांगीर तरीन की मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। NA 127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त का मामला, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल की मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चौधरी असलम गिल बिलावल भुट्टो की शिकस्त पर कमेटी बनाने की तजवीज़ देंगे। कमेटी शिकस्त का सबब बनने वाले असबाब का तयन करेगी। जमात इस्लामी का 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने कहा, इलेक्शन 2024 में धांधली नहीं बल्कि धांधली का झरलू फिर गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफौर इस्तीफा दें। इलेक्शन में धांधली पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2024 चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने इफ्तिताह किया। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान भी हमरा थीं। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक भी शरीक हुए। प्रो रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन की भी शिरकत। कल्चरल फेस्टिवल में चारों सूबों की नुमाइंदगी और मार्च पास्ट किया गया। तलबा के ग्रुप्स का रिवायती अंदाज में रक्स। वो चीजें सिखा सकते हैं जो शायद क्लासरूम में नहीं सिखा सकते। हम आपको ये सिखा सकते हैं कि सियासतदानों की तरह रौंदी नहीं मारनी। हम आपको सिखा सकते हैं कि अपनी हार को बर्दाश्त करना है। हम आपको सिखा सकते हैं कि हार से सीख कर फिर खड़े होने। हम आपको सिखा सकते हैं कि जीतने के बाद हारने वालों को साथ लेकर कैसे चलने। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। जो लोग कहेंगे ना, वो जो सोचेंगे मिलेगा इंशाल्लाह। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। और इफ यू थिंक यू कांट, यस यू कांट। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तालीम के मामले में हमेशा लीड किया है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियों, लिटरेचर और अदब के बगैर इंसान नामुकम्मल है। यूनिवर्सिटी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी तुलबा को आगे लेकर चल रही है। अगर आप लीडरशिप सिखाना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाना चाहते हैं, टीम वर्क सिखाना चाहते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ के बगैर नहीं सिखाई जा सकती। और इट हैज़ टू बी अ लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। तो आज का जो स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल है, ये एक बड़ा खूबसूरत मुजाहरा है टीम वर्क का, लीडरशिप का, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, किस तरह से जो है वो टीमों ने, यूथ ने किस तरह अपने आप को जो है वो प्रिपेयर किया है कि हम लोगों ने कैसे जीत को सेलिब्रेट करना है। और एक्चुअली ये सिखाता है कि हिम्मत, जज्बा और जुनून क्या है। तो स्पोर्ट्स के बगैर जो है वो हिम्मत, जज्बा, जुनून हम लोग अपनी यूथ में इनकलकेट नहीं कर सकते। उनको आना चाहिए कि गिर के हम लोगों ने खड़ा कैसे होना है और कैसे अपनी जीत को ना सिर्फ सेलिब्रेट करना है बल्कि हार के साथ जो है वो कैसे उसको एम्ब्रेस करके दूसरों को चेयर अप करना है। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत एक्टिविटी है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो हम लोग स्किल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो करैक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आप नौजवानों की किरदार साजी में खेलों की बहुत अहमियत है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान का कहना है, तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनाना जा सकता है। कौमी सकाफत नौजवानों की शमूलियत से उजागर होती है। हमारे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत आगे हैं बल्कि उसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं अल्लाह के फजल करम से। जहाँ तक इस इवेंट की बात है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि असल मकसद ये है कि बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग की जाए, बच्चों को ये बताया जाए कि कैसे खेलना कैसे, और खेल के जीत और हार जो है वो दोनों
पार्ट ऑफ द लाइफ है, और हारने के बाद दोबारा खड़ा कैसे होना है और नंबर 1 कैसे बनना है। तो ये जो करैक्टर बिल्डिंग है, इसको सिखाने के लिए और एक सब्र और उसके साथ साथ एक आपस में प्यार मोहब्बत सिखाने के लिए इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चरल डे में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने का मौका मिलता है। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, हमने कल्चरल डे मनाया जिससे तुलबा को अपनी सकाफत करीब से जानने का मौका मिला। इसमें कल्चर स्पोर्ट दोनों को मिलाया गया है और ये होना चाहिए। कल्चर स्पोर्ट्स को अलग अलग नहीं करना चाहिए, साथ साथ मिलाना चाहिए। और आज का जो इवेंट है दोनों को कंबाइन कर रहा है, तो मेरे ख्याल सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया इस मामले में। स्पोर्ट चल रहा है स्पोर्ट्स, आज तो क्लोजिंग सेरेमनी है। निसाबी सरगर्मियाँ कंप्लीट नहीं हो जब तक इस किस्म की तकरीबात भी ना हो। स्पोर्ट्स, कल्चर, इवेंट्स साथ साथ चलने चाहिए। निसाबी सरगर्मियाँ खेलों के बगैर अधूरी हैं। प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन कहते हैं, फेस्टिवल में कल्चर और स्पोर्ट्स की अहमियत को उजागर किया गया। कल्चरल एक्टिविटीज आपको इंक्लूसिविटी सिखाती है। मर्द और औरत दोनों की पार्टिसिपेशन को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। डाइवर्सिटी सिखाती है। हेरिटेज को आप फरोग देते हैं। ट्रेडिशंस, आप अपने कल्चरल ड्रेसेस, कल्चरल डांसेस, अपने बिलीफ्स उसको शोकेस करते हैं दुनिया के सामने। आप अपनी हिस्ट्री और क्रिएटिविटी को सामने रखते हैं। पाकिस्तान में गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ऐसी तकरीबात ज़रूरी हैं। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का खिताब। कहा, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की तालीम और तरबियत का लाजमी हिस्सा हैं। वाइस चेयरमैन HEC महमूद सलीम ने कहा, तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। हम एक अच्छा इवेंट एक्सपेक्ट करते हैं और स्पोर्ट्स वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं तलबा की जो शख्सियत की तामीर के लिए, तो हम बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं इवेंट। नौजवान हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और ये रंग तो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए। गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें एक अच्छी शख्सियत चाहिए, अच्छे शहरी चाहिए मुल्क को, तो जहाँ किताबी इल्म के साथ साथ शख्सियत की तामीर बहुत ज़रूरी है और उसमें हम निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत अहम रोल अदा करती हैं। सबको इसमें अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं और गैर निसाबी। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल का मेला तलबा की जानिब से खाने पीने और मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने स्टॉल्स का जायजा लिया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी हमरा थी। के जो फेस्टिवल हैं ये स्टूडेंट्स की जो ज़हनी इस्तेदाद है इसको जिला देते हैं और उसके अब उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है जो कि आजकल बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के अंदर पैदा होना। तो ये अब हम फिर फूड भी इंजॉय करते हैं, अपना स्पोर्ट्स भी इंजॉय करते हैं, तो बड़ा अच्छा फेस्टिवल ये है। मैंने बहुत कम देखा है कि जितना ख़ास तौर पर जो इसके सारे जो इसको जो है मैनेजमेंट के जो लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं इसके ऊपर और बड़ी उसमें एक परफेक्शन नज़र आती है। स्पोर्ट्स में भी, फूड में भी बड़ा एक डिलीशियस फूड होता है, वो भी बड़ा एंजॉय करते हैं, तो एक ज़बरदस्त इवेंट है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा इवेंट मुनक्किद कराया। सीनियर नून लीगी रहनुमा मियां माजिद ज़हूर की लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू। कहा, कामयाब फेस्टिवल कराने पर सुपीरियर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए सुपीरियर मेला बेहतरीन इवेंट है। तलबा ने सुपीरियर इवेंट को खूब सराहा। कहा, खेल और तालीम का चोली दामन का साथ है। सेहतमंद मुआशरे में तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियाँ इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, बिकॉज सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए ये स्पोर्ट्स कल्चर गाला जो है ये अरेंज कराया है और जो हमारा थीम है और जो है वो पश्तो कल्चर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर साल ऐसा खूबसूरत मेला सजाती है जो कि तमाम प्राइवेट सेटअप्स में सबसे एक आला मिसाल है इस चीज़ की कि हम एक स्पोर्ट्स मेला अरेंज करते हैं जिसमें हर तरह के कल्चर, जिसमें 20 से 25 कल्चर्स हम उनको रंगो रंग पेश करते हैं और ये कल्चर एक बहुत बेहतरीन एक ज़रिया है पाकिस्तान के सकाफत को उजागर करने का।
सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों का इनकाद। रस्साकशी मुकाबलों में सबा हाउस ने मैदान मार लिया। बॉयज़ रस्साकशी मुकाबलों में जुबैर हाउस ने फतह समेटी। खवातीन की 100 मीटर चाटी रेस चंदा हाउस ने अपने नाम की। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में सकाफत के रंग नुमाया। हबीबा हाउस की शानदार एंट्री, मार्च पास्ट और पंजाबी कल्चर पेश किया। भगड़े ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में पश्तून कल्चर के रंग बिखर गए। हेरा हाउस ने पश्तून कल्चर की नुमाइंदगी की। तुलबा ने रवायती रक्स पेश किया। तुलबा ने पठान कल्चर के खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए। कल्चर खूबसूरती की अलामत। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में सायरा हाउस की जानिब से कैलाश कल्चर की नुमाइंदगी। तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में कैलाशी रक्स पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें अरूज पर। हर सू सकाफती रंगों की बहार। चंदा हाउस ने बलोच कल्चर पेश किया। तुलबा ने सुर्ख रंग का खूबसूरत लिबास पहनकर रिवायती रक्स पेश किया। हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। फेस्टिवल में बिखरे सिंधी सकाफत के रंग। तैयबा हाउस की ऊँटों के साथ कल्चरल फेस्टिवल में शानदार एंट्री। तैयबा और अली हाउस ने सिंधी कल्चरल की नुमाइंदगी की। तलबा ने खूबसूरत अंदाज में रक्स भी पेश किया। मेरा देश मेरी पहचान, बल्तिस्तान बल्तिस्तान। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में रोहेल हाउस की जानिब से बल्तिस्तान कल्चर की नुमाइंदगी। तुलबा ने बल्तिस्तानी रक्स पेश करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप और चेयरमैन PHEC को बल्तिस्तानी टोपी पहनाई गई। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में जुबैर हाउस ने सूफी कल्चर पेश किया। तलबा की जानिब से कलंदरी धमाल। अकील हाउस के पंजाबी घबरुओं ने रक्स पेश किया। तलबा ने मौला जट और नूरी नत का करैक्टर भी पेश किया। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में अरबी सकाफत के रंगों की बहार। रेहान हाउस ने अरबी कल्चर की नुमाइंदगी की। तुलबा की जानिब से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मार्च पास्ट। तुलबा ने खूबसूरत अरबी लिबास पहनकर रक्स भी पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मेले के रंग। नासिर हाउस ने पख्तून कल्चर पेश किया। तलबा की जानिब से तलवारों को हाथों में थामे शानदार रक्स का मुजाहिरा। जलीस हाउस ने टर्किश कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने रिवायती रक्स भी पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में इनामात तकसीम। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने फाते खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की। वेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मेडल्स दिए। रंगारंग मेले के इख्तिताम पर मारूफ गुलकार इब्रारुल हक के गानों का तड़का। तुलबा और तालिबात खूब लुत्फानंदोज हुए। मुल्क के बड़े और सबसे महंगे इलेक्शंस। हुकूमत और उम्मीदवारों ने 56 अरब रुपए इंतखाबात पर फूंक डाले। हुकूमत ने इलेक्शंस के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को 50 अरब रुपए रकम दी। इलेक्शन कमीशन को कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से ज़र जमानत की मद में 67 करोड़ रुपए वसूल हुए। बाकी रकम उम्मीदवारों ने झोंक दी। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। डीजल 7 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर ta दिसंबर 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त की समाअत सुब्ह करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए बड़ा इक़दाम। 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी।
محکمہ اوقاف لاہور میں اربوں روپے کی جگہ نیلام کرنے میں ناکام، محکمے کو آمدن کی مد میں بھاری مالی نقصان کا سامنا۔ ہال روڈ کے وسط میں اربوں روپے کی قیمتی اراضی عملے کی ملی بھگت سے موٹر سائیکل سٹینڈ میں تبدیل۔ 52 سمارٹ پولیس اسٹیشنز کی زمین محکمہ داخلہ پنجاب کے نام منتقل۔ نگران پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ محکمہ اوقاف کی زمین پر 3 اور محکمہ جنگلات کے اراضی پر 2 پولیس اسٹیشنز قائم ہیں۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کے لیے اچھی خبر، فیل ڈرائیورز اب 42 کے بجائے 15 روز میں دوبارہ ٹیسٹ دے سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی۔ خیابان فردوسی ماڈل ٹاؤن پر سیوریج لائن کی خستہ حالی، شوق چوک سے شوکت خانم ہسپتال تک سڑک آئے روز بیٹھنے لگی۔ حادثات معمول بن گئے۔ واسا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیوریج لائن تبدیل کرنے کی منصوبے کی سمری ارسال کر دی۔ ڈیفنس اے میں خاتون کی عمارت سے مبینہ چھلانگ لگانے کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے مقتولہ کے بیٹے کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مقتولہ حلیمہ کو حماد نے 13ویں فلور سے دھکا دے کر قتل کیا۔ مقتولہ محمد حماد کے ساتھ نجی فلیٹ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ سانحہ فیصل چوک کے پولیس شہدا کی 7ویں برسی، پنجاب پولیس کا بہادر شہیدوں کو سلام۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، یوم شہدا چیئرنگ کراس کے بہادر شہیدوں سے تجدید عہد کا دن ہے۔ ڈی آئی جی احمد مبین، ایس ایس پی زاہد گوندل سمیت 7 افسر اور اہلکاروں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کی سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری، شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سی سی پی او لاہور نے کہا، تمام شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سی ٹی او لاہور کا سانحہ مال روڈ کے شہداء کو سلام۔ عمار آتھر نے کہا، فخر ہے ایسی فورس کا حصہ ہوں جس نے ملک و قوم کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔